So now we have to discuss methods of job evaluation, right? Yes, all the Yes, ma'am. advantages and all these all things was done. Yes, ma'am. Okay, let's proceed to methods of job evaluation. So what is job evaluation? It is a simple word. Job is a in the ratio of job. I mean, it is in a simple word. We can say it is a job in an organization. Ma'am. It is a job in an organization. Yes, ma'am. You're not revising or what? Ma'am, I'm revising. Why you need to mug it up anything? Just bifurcate the word job evaluation. What we are evaluating in it. मैम मैम इंडस्ट्री की जॉब एवोल्यूशन में मैम बस पता मतलब कि देखते हैं कि क्या We have this still advantage and now you are not able to say even the definition of job evaluation. We have मैम मेरे already, पास huh? मैम मेरे पास तो है सारा डिफिनेशन लिखा हुआ बट जो रिलेटिव वर्थ है जॉब का, उस यस जॉब पे कितना सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर जॉब में कितना काम करवाना होगा, क्या क्या काम है, उसके अकॉर्डिंग वेज वगैरह डिसाइड करना, दैट इज यस जॉब इवैल्यूएशन. यस और नो? यस How we will do that job evaluation? For that we have two methods with us. One is non-quantitative method, another one is quantitative method. क्वांटिटी Okay. In non-quantitative, there is ranking or job comparison, and next one is grading or job classification. All right. And in quantitative, we see again two methods. One is point rating and another one is factor comparison. All right. So let's discuss one by one. So basic difference between these two methods lies in the sense that under non-quantitative method, a job is compared as a whole with other job in the organization. Mean to say कि एक particular job में, sorry, एक particular organization में कितना job है, एक जॉब को दूसरे जॉब से हम कंपेयर करते हैं. लाइक आई सेड कि पीओ का कंपैरिजन होता है ब्रांच मैनेजर से, ठीक है, किसका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीओ का या ब्रांच मैनेजर का, किसका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रांच मैनेजर का या एरिया मैनेजर का, ठीक है. तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में हम हर एक जॉब को कंपेयर कर रहे हैं. ऑल राइट. Whereas in case of quantitative method, the key factor of the job are selected. Key factor of the job कहने का मतलब जैसे क्या स्किल सेट चाहिए होगा, क्या नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है. तो दीज की फैक्टर्स वी हैव टू सेलेक्ट, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग वी एसोसिएट पॉइंट विद दैट. क्वांटिटेटिव है ना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, आप यहाँ पे पॉइंट देंगे हर काम के लिए. जैसे क्या स्किल चाहिए होगा, स्किल्ड का रिक्वायरमेंट है या अनस्किल्ड का, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट मिलेगा. अगर नॉलेज की बात करें तो क्या इसमें 12th पास चलेगा या फिर हाई फाई नॉलेज चाहिए, लाइक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, ठीक है. नॉर्मल आपका बीकॉम के लोग भी वो काम कर लेंगे या फिर सीए चाहिए आपको. Yes, so this type of comparison we are doing, that is only known as key factor of the job. All right, the key factor of the job is selected and then measured. So four method of job evaluation are now discussed. First one is rank method, and as usual in job, as it was in performance appraisal, it is the simplest form. In job evaluation also, it is simplest form of job evaluation. In this method, each job as a whole is compared with other, right? And this comparison of the job goes on until all jobs have been evaluated and ranked. Okay? Until and unless all the jobs are evaluated and ranked, this process of comparing and ranking will go on. All jobs are ranked in order of their importance. मतलब उसके importance के basis पे hardest, simplest से लेके hardest के मैम basis. ये रैंकिंग मैटर में जो कंपेयर होता है ये उसी के मतलब कि उसी के कंपनी में पोस्ट पे ना कंपेयर करता होगा. हाँ, इसीलिए तो कहा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे मैंने आईसीआईसी बैंक कहा, तो आईसीआईसी बैंक के अंदर कौन कौन सा जॉब है, ठीक है, किस जॉब का क्या रैंकिंग होना चाहिए, कौन सा जॉब सबसे सिंपलेस्ट से लेकर के हाईएस्ट के बेसिस पे रैंकिंग कर सकते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट के बेसिस पे हम लोग रैंकिंग कर सकते हैं. जैसे यहाँ एग्जांपल भी मैंने रखा है, जैसे रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी जॉब. एक यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा जॉब होता है, जैसे अगर ये लेक्चरर पहले बोला जाता था, अब तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है,
या लेक्चरर, इसके ऊपर रीडर, और यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार है, यहाँ पे रजिस्ट्रार है और प्रोफेसर है। इस तरीके से हम रैंकिंग कर रहे हैं किसका काम ज्यादा है। ठीक है, लेक्चरर सबसे नीचे, रीडर उसके ऊपर, प्रोफेसर सबसे ऊपर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग पे स्केल यहाँ डिसाइड करते हैं। एंड पे स्केल अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये वेरी करेगा। अभी जो पे स्केल मिल रहा है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अगेन टाइम टू टाइम ये वेरी करता रहता है। तो इस ये रैंकिंग ऑर्डर क्या हो गया कि हम एक ऑर्डर में रैंक कर दिए, सिंपलेस्ट काम किसका होगा, हार्डेस्ट काम किसका होगा, उस अकॉर्डिंग हम लोग रैंक कर दिए। ऑलराइट, द एप्लीकेशन ऑफ द रैंकिंग मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसीजर। And first procedure will be analyze and describe jobs, bringing out those aspects which are to be used for the purpose of job comparison. All right, first of all, we will analyze the job. What all things we have to do in particular designation. All right, like assistant professor की job पे अगर हम lecturer के post पे अगर हम जाते हैं तो क्या काम करना होगा, रीडर के पोस्ट पे जाएंगे तो क्या काम करना होगा, प्रोफेसर के पोस्ट पे जाएंगे तो क्या क्या काम एडिशन हो रहा है। ठीक है, so this we have to analyze. Next one is identify benchmark job, 10 to 20 jobs which include all major department and function. The job may be the most and least important job. Understood? सबसे least important कौन job है और सबसे मतलब सबसे ज्यादा important job कौन सा है, वो हम लोग एक benchmark decide कर लेंगे. A job midway between the two extreme and the other at the higher or lower intermediate point. ठीक है, मतलब सबसे नीचे वाला डिसाइड कर लिए। जैसे मान लीजिए बैंक की अगर मैं बात करूँ, चलो सबसे नीचे क्लर्क का पोस्ट है। ठीक है, सबसे ऊपर आपका जोनल हेड होता है, ऊपर भी लीजिए सीईओ, सब हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो पोस्ट बीच में जो होगा, कौन कौन सा पोस्ट होगा, क्या क्या लाई करेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में एक बेंचमार्क डिसाइड कर लिए, 10 to 20 जॉब हम लोग बेंचमार्क के लिए लिए। अब फिर किस जॉब को फिर इस बीच में कहाँ एडजस्ट करेंगे। ऑलराइट, दिस by this method we can do rank all job in the organization around the benchmark jobs until all jobs are placed in their rank order or of importance. All right, and again it is done for small size organization where jobs are simple and few. There only we can implement this ranking method. It is also suitable for evaluating managerial job wherein job content cannot be measured in quantitative term. Right, everywhere we don't use quantitative term. Qualitative method means ranking method where it will be suitable for small organization. All right, and ranking method being simple one can be used in the initial stage of job evaluation in an organization. All right, this is all about job ranking method. And if we talk about merit and demerit, first merit will be simplest method, and being a simplest method, it is also quite economical to put it into effect. Okay, and it is less time consuming and involve less paperwork, as it is very simple one. Demerit is what? The main demerit of the ranking method is that there is no definite standard of judgment, and also there is no way of measuring the difference between the job. कहने का मतलब जैसे क्लर्क और पीओ, इन दोनों के जॉब प्रोफाइल में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, कितने का अंतर होना चाहिए, दैट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इन रैंकिंग मेथड. ठीक है, आखिर कितने का गैप हो, कितने का सैलरी का डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, इट इज मीन्स अगेन वी कैन से दैट ये ह्यूमन एरर से इसमें भी डिमेरिट होता है ह्यूमन एरर का, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है. तो आप डिफरेंस हमेशा सही हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. Right, it suffer from its sheer unmanageability when there are a large number of jobs. The same, it is for a small organization. So where the organization has big number of job is more, there we cannot use this ranking method. All right. So this is first qualitative method. Now let's talk about second qualitative method, that is grading method. In grading method is also known as classification method. You remember the grading method in performance appraisal? What we do in grading method? मैम उसके जितने भी स्केल के हिसाब से हम लोग ग्रेड देते थे उसको. तो यहाँ देखिए रेलवे का जॉब आप ले सकते हैं. रेलवे में कैसे होता है कि ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का. तो आपका जॉब किस ग्रेड में लाई करता है, उस अकॉर्डिंग आपका सैलरी इन बिटवीन मान लीजिए रेंज होता है. जैसे 15,000 टू 30,000 के बीच में लाई करेगा, या 35,000 से लेकर के 50,000 के बीच लाई करेगा. ठीक है, इस तरीके से ग्रेडिंग हो जाता है. तो जिस ग्रेड में आप लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी. ठीक है, सो under this method job grades or classes are established by an authorized body or committee appointed for this purpose.
फाइन। जो ग्रेडिंग करने का जिम्मा किसका होता है? किसी ऑथराइज बॉडी का या कमिटी जो अपॉइंट किया जाता है वो चेक करते हैं कौन से जॉब को किस ग्रेड में डालना चाहिए। A job grade is defined as a group of different jobs of similar difficulty or requires similar skill to perform them. Job grades are determined on the basis of information derived from job analysis. All right. So on the basis of job analysis कहने का क्या मतलब है? जो JD हम लोग देखते हैं job analysis में, job description कि उस particular job में क्या क्या काम होगा. Like आपको मैसेज भी अभी गया होगा. Have you seen message? यस मैम, वो इंटर्नशिप वाला। Is it in PGDM group or not? Right now I have seen in that various list is given of JD. I'll show you. Okay, see. Job description. This job is of company name is Reliance Retail. Compensation is also given. Position name is Department Manager in Training. All right. Department Manager in Training. And JD, what all things are given? Like handling day-to-day store operation and ensures maximum profitability to the store. First job, which you need to perform. Second is maintains the store staff by recruiting, selecting, orienting, training employees. All right. This is the second job we have to perform. Third was delineate and achieve financial objective by achieving an annual budget. So these are job description. It is not given in your group. PGDM 20. Let me check eligibility. So I'll tell you, just for example, I am sending it to you. I think you all are not eligible now. It is for final year students, I suppose. Okay. I'm sending to your group and see how JD is given. Whenever any post will generate, मतलब किसी कोई भी कंपनी में कोई भी पोस्ट जनरेट होगा तो इसी तरीके से भेजा जाता है. Okay, I'm sending you personally. See, check out. इसी तरीके से जेडी होता है, इसी तरीके से लिस्ट दिया होता है. लाइक आप अगर डिपार्टमेंट मैनेजर इन ट्रेनिंग के पोस्ट पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो दीज जीडीज ये सारा जॉब आपको परफॉर्म करना होगा. तो इसके बेसिस पे हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर काम हो सकता है और इससे रिलेटेड और कौन कौन सा काम है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेडिंग करते हैं. फाइन. Check out after this class. So the grades of the classes are created by identifying some common denominator such as skill, knowledge, responsibility. The example of job grade may include depending on the type of job of organization offer. ठीक है, अब कौन कौन सा job organization offer कर सकता है ये हम लोग चेक करते हैं. It will come in category of skilled or it will come in the category of unskilled. ठीक है, मैनेजरियल काम है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, अकाउंट क्लर्क है या क्लर्क कम टाइपिस्ट, स्टेनियोटाइपिस्ट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट. ठीक है, किस टाइप का काम है और उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, स्किल्ड के कैटेगरी में रखेंगे, अनस्किल्ड के कैटेगरी में रखेंगे. बिसाइड दैट here is the clear example. See, brief description of such a classification in an office. Like class 1 में हम किसको किसको रख रहे हैं, तो class 1 में जितना भी आपका एग्जीक्यूटिव्स है, ठीक है, सारा क्लास 1 में हम कैटेगराइज कर दिए. ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन अंडर दिस कैटेगरी में भी ऑफिस मैनेजर, डिप्टी ऑफिस मैनेजर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, फिर डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर. ठीक है, दीज ऑल आर एग्जीक्यूटिव. सो सारे एग्जीक्यूटिव को क्लास 1 में रख दिए. सेकेंड इज क्लास 2. जितने स्किल्ड वर्कर हैं उसको हम इस क्लास में रख दिए. स्किल्ड में कौन कौन आ गए, परचेजिंग असिस्टेंट, कैशियर, रिसिप्ट्स क्लर्क. ठीक है, ये स्किल्ड में आ गया. अब सेमी स्किल्ड में कौन कौन, स्टीनोटाइप, मशीन ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर. फिर अनस्किल्ड में कौन कौन, प्यून, मैसेंजर, हाउसकीपिंग स्टाफ, फाइल क्लर्क, ऑफिस बॉय. इसको हम अनस्किल्ड में रख दिए. ठीक है, तो हम लोग एक एक को नहीं क्लासिफाई करके सबको हम कैटेगराइज कर दिए. ठीक है, so this is how grading is done. All right, yes or no? Yes ma'am. Okay, now let's talk about merit of grading method of job evaluation. First is, it is easy to understand, simple to operate.
It is also economical and therefore suitable for small organization. And another benefit is that grouping of job into classification makes pay determination problem easy to administer. Right? हम इकट्ठा ही मतलब ग्रेडिंग कर दिए और बहुत सारे जॉब को एक ग्रेड में कवर कर लिए, तो अगेन इट इज इजी टू एडमिनिस्टर. राइट? दिस मेथड इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट जॉब, जैसे रेलवे का मैंने एग्जांपल दिया. अब अदर एग्जांपल डिमेरिट्स आर द मेथड सफर फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ कमिटी मेंबर. ऑलराइट, पर्सनल बायसनेस होता है कमिटी मेंबर का, लाइक पॉसिबिलिटी है कि वो जो ग्रेड में रख रहा है कोई और बोले कि नहीं ये ग्रेड में नहीं, किसी और ग्रेड में हो सकता है. ठीक है, क्योंकि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में बहुत सैलरी डिफरेंस हो जाता है. अगर आप देखें क्लास 1 का जो सैलरी है और क्लास 4 का जो सैलरी है, there will be huge difference between these if we compare this two class. All right. So again, it cannot deal with complex job which will not fit neatly into one grade. All right. If it is complex job, then again we cannot fit into one grade. This method is rarely used in any industry. Fine. So these are the demerit of. तो मैम ये तो सिर्फ उसमें ही यूज होता ना, रेलवे वाले में? सिर्फ रेलवे वाले में नहीं, और एग्जांपल आप एसएससी वगैरह का एग्जाम अगर देते होंगे, एसएससी में भी ना ग्रेड 1 ग्रेड 2 ज्यादातर गवर्नमेंट वाले में ही यूज होता है ये फर्स्ट. हाँ, गवर्नमेंट वाले फैक्टर में ही यूज होता है मैम. हाँ बिल्कुल. तो अगर आप एसएससी सबका एग्जाम अगर फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो उसमें भी देखते होंगे ग्रेड ए का निकलता है, ग्रेड बी का निकलता है, इस तरीके से होता है. राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज वी आर स्विचिंग नाउ टू क्वांटिटेटिव मेथड. ठीक है, इन क्वांटिटेटिव मेथड इफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल कम दैट व्हिच वन इज वाइडली यूज्ड मेथड, देन वाइडली यूज्ड मेथड इज पॉइंट रेटिंग. पॉइंट. So this is most widely used method of job evaluation. Under this method, jobs are broken based on various identifiable factors. All right. In those method, in ranking and grading, we didn't identify any factor. All right. But here, what we are doing, we are just breaking those job into identifiable factors. All right. And what are those factors? Skill, effort, training, knowledge, hazards. What do you mean by that? Like मतलब आपको जहां पोस्ट किया जा रहा है वहां पे कितना खतरा है. अगर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी को भी चेंज करना होगा, बढ़ाना होगा. ठीक है, तो हजार्ड अगेन, या मान लीजिए, और अगर मैं बोलूं कि कौन कैसा काम आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसको कितना खतरा आपको होता है, जैसे बिजली का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजली इज अगेन यू आर एक्सपोज टू रिस्क. यस, तो हजार्डियस काम है तो थोड़ा सैलरी वहां पे आपको एक्स्ट्रा हजार्ड के बेसिस पे देना होगा. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पॉइंट एसोसिएट होता है सारे फैक्टर्स में. ठीक है, सो देयरफॉर पॉइंट आर एलोकेटेड टू ईच ऑफ दीज फैक्टर. वेट्स आर गिवन. ठीक है, किस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप वेट भी देंगे, सिर्फ पॉइंट देकर के खत्म नहीं हो रहा. यहाँ पे वेटेज कहने का क्या मतलब है? अब जैसे मैनेजरियल जॉब में आपको नॉलेज का वेटेज ज्यादा होगा, स्किल का वेटेज ज्यादा होगा. ठीक है, हजार्डियस तो कुछ काम होता नहीं है तो हजार्डियस में कम वेटेज होगा. ठीक है, इस तरीके से हम लोग पॉइंट यहाँ पे एसोसिएट करेंगे और फिर वेटेज हम लोग डालेंगे किसमें, मतलब अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस. वेटेज मतलब क्या हुआ, किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस जॉब में. ऑलराइट, so weightage are given to factor depending on their importance to perform the job. Points were allocated to various factors of the job are then summed. Then the job with the various total of the point are placed in similar pay grade. The sum of point gives an index of the relative relevance, the significance of the job that are rated. See here example. These are compensable factors. ठीक है, किसी भी जॉब में हम जनरली ये चार चीज तो देखते हैं. ठीक है, जैसे स्किल है, पहले चार चीज देख लीजिए क्या क्या देखना है. फर्स्ट वन इज स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट और वर्किंग कंडीशन. नाउ स्किल इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड. सी experience, education, skill, yes, in a skill we will see that how much experience it is required, how much education that particular post is demanding, how much ability that particular post is demanding. Then if we talk about responsibility, then which type of responsibility you need to hold, whether it is fiscal or supervisory. When supervisory means what, you are just standing and you need to watch, or fiscal means what, you are financially also you are responsible. All right, now let's talk about effort. Effort means what, mental or physical. मतलब अगर आप लेबरर हैं तो ऑब्वियसली आपका फिजिकल एफर्ट ज्यादा लगेगा, अगर आप मैनेजर हैं तो आपका मेंटल एफर्ट लगेगा. यस और नो? नाउ वर्किंग कंडीशन, अगेन व्हाट आई डिस्कस कि आप लोकेशन कहाँ है आपका,
हजार्ड्स कितना एसोसिएटेड है आपके वर्किंग कंडीशन में, फिर एक्सट्रीम्स इन एनवायरनमेंट, आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसका क्या कंडीशन है। ऑलराइट, सो दीज ऑल पॉइंट विल कम इन वर्किंग वो तो कंडीशन। हजार्डियस में ही आ जाएगा ना, गवर्नमेंट तो वाला भी अगर। हजार्डियस में हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं ना कि आपका जॉब कितना खतरनाक है, जैसे बिजली का मैंने बात किया, बिजली का कोई यस काम कर मैम। रहे हैं तो दैट इज हजार्ड्स। ठीक है, अब जैसे भूकंप का जैसे मैंने बात किया वो आप थर्ड पॉइंट में रख सकते हैं, एक्सट्रीम्स इन एनवायरमेंट। ऑलराइट, यस। किसी जगह बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रहा है, किसी जगह बहुत ज्यादा गर्मी है, राजस्थान टाइप सारी जगह, मतलब डिपेंडिंग अपॉन एक्सट्रीम ऑफ इन्वायरमेंट आपकी सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगी। ठीक है, तो ये सारे हम लोग फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। फाइन। यस मैम। अब जैसे प्लम्बर का ही काम है, तो प्लम्बर का काम तो आई डोंट थिंक कि इन कोई हजार्डियस काम है, लेकिन ये बिजली का काम हजार्डियस है। और अगर माइंस का अगर आप एग्जांपल लें, ठीक है, तो वो माइंस में भी जो हजार्डियस है मैम। हैं वो भी हजार्डियस है, वहाँ कंप्रेस्ड एयर की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है लोगों को। यस। ठीक है, फिर अगर आप मान लीजिए और कहीं ऐसे जगह पे, जैसे अदनान सर बताते होंगे कि उनका जब दुबई में पोस्टिंग था तो बुर्ज खलीफा उस टाइम बन ही रहा था, तो वहां का जो धूला वगैरह आसपास जितनी भी इंडस्ट्री थी उन लोगों को लेना पड़ता था, उसके वजह इसके लिए उन लोगों को कंपनसेशन वगैरह भी देना पड़ता था। वो इतने पुराने हैं। क्या चीज? वो इतने पुराने हैं, उसमें मुझे तो बन ही रहा था। तो क्या बोलूंगी, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वो। खैर, यस। लेट्स प्रोसीड नाउ। असाइनिंग पॉइंट्स, so we will assign point after that, the analyst divide each factors। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, जैसे नो एक्सपीरियंस अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो 10 पॉइंट्स मिलेगा वहां पे। और अगर 1 to 3 years का एक्सपीरियंस है तो 30 पॉइंट, 4 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 50 पॉइंट, 7 to 10 years का एक्सपीरियंस है तो 75 पॉइंट्स, ओवर 50 years एक्सपीरियंस है तो 100 पॉइंट। इस तरीके से हम लोग, देखिए एक में पॉइंट एसोसिएट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पॉइंट डालते हैं। अब सेम वे, खैर ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, एक यहाँ पे एग्जांपल सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए कि एक्सपीरियंस के फैक्टर में कैसे हम ग्रेडिंग लोग। मैटर में जो आपने बताया था कि सैलरी ग्रेड पे डिपेंड होता है, इसमें तो एक्सपीरियंस भी तो आ सकता है ना मैम। सेल ऐसा जरूरी नहीं है, अब जैसे एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है, एक मिनट वापस यस। आते हैं इस फाइल में। लाइक अगर इसका काम बोले अनस्किल्ड का, तो उसमें कितने एक्सपीरियंस की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग फैक्टर कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग जस्ट जेडी देख रहे हैं कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। अनस्किल्ड काम है ये सारा कुछ, तो अनस्किल्ड की कैटेगरी में रख दिए। ठीक है, कि कोई स्किल का जरूरत नहीं है, बस इतना ही देख रहे हैं ना हम लोग, कोई यस फैक्टर मैम। को कंपेयर नहीं कर रहे। नो एग्जीक्यूटिव का मैम। हम लोग ये बस देख रहे हैं कि ठीक है इसमें मेंटल एबिलिटी चाहिए, लेकिन फैक्टर में तो डिवाइड किए नहीं। ठीक है, सारे एग्जीक्यूटिव्स को हम इस क्लास में रख दिए, स्किल्ड को इस क्लास में रख दिए। ठीक है, तो हम लोग फैक्टर तो यहाँ नहीं ले रहे हैं, हम लोग काम के बेसिस पे सब लोग को ग्रेड दे रहे हैं। ठीक है, किसका यस एग्जीक्यूटिव मैम। वाला काम है, किसका स्किल्ड वाला काम है, किसका सेमी स्किल्ड काम है, किसका अनस्किल्ड काम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। फैक्टर तो यहाँ ना रैंकिंग में ले रखा है हमने, ना ग्रेडिंग में ले रखा है। ठीक है, यस। काम कितना परफॉर्म करना है, ओवरऑल जॉब का कंपैरिजन हुआ। ठीक है, ओवरऑल जॉब का कंपैरिजन करके रैंकिंग किए, और इस कैटेगरी से हम लोग ग्रेडिंग किए। एंड हियर वी आर जस्ट गिविंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू फैक्टर बेसिस, और फैक्टर में भी एक एक को और फर्दर क्लासीफाई करके इस तरीके से पॉइंट दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, लाइक वेटेज से फिर इनटू कर रहे हैं, लाइक 1.5 वेटेज फैक्टर है इसका। अब जैसे और एग्जांपल अगर डिटेल में पढ़ेंगे, if an office manager position required 4 to 6 years of experience, it would be assigned a primary value of 50 points for this factor. However, if the experience is among the most important factor, it will be weighted itna. ठीक है, and thus the final value of the experience factor for the office manager job would be 75। यानी देखिए, मान लीजिए 50 पॉइंट दिया गया है, इतना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे 50 पॉइंट मिला। ठीक है, यस मैम। ऊपर था ना 4 to 6 ईयर एक्सपीरियंस को कितना यस पॉइंट, मैम। 4 to 6 ईयर, देखिए 50 पॉइंट। 50 पॉइंट। ठीक है, अब यही यहाँ जो नीचे 50 है वो उसी का 50 है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम पॉइंट दिए। अब ये एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो हम 1.5 से इसको इंटू किए। ठीक है, अब इसी बेसिस पे देखिए, इफ द ऑफिसर मैनेजर जॉब रिक्वायर एन एजुकेशन लेवल ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट, बस एजुकेशन इज लेस इंपॉर्टेंट, इट माइट बी वेटेड एट अ स्मॉलर नंबर। अब लेस इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, तो मान लीजिए एक्सपीरियंस से हम लोग जैसे नॉर्मल ग्रेजुएट है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया, तो हम एक्सपीरियंस को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैनेजरियल पोस्ट पे फ्रेशर को नहीं रखा जाता है,
पता होगा, Yes. है ना, एक्सपीरियंस को रखा जाता है। अब एजुकेशन का मान लेते हैं हम, ग्रेजुएट पास करके भी मैनेजरियल स्किल मेरे अंदर आ गया। अब एमकॉम फ्रेशर है या एमबीए फ्रेशर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेटेज किसको दे रहे हैं, एजुकेशन को थोड़ा कम दे रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस का वेटेज ज्यादा दे रहे हैं हम लोग, एजुकेशन का वेटेज थोड़ा कम दे रहे हैं, तो थोड़ा कम दे रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर इसका हम एसोसिएट कर दिए वेटेज 0.75, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटू करके फाइनल टेबल तैयार करते हैं, और समेशन के बाद, सम करने के बाद जो फाइनल टोटल निकलता है उसके बाद हम कैटेगराइज कर देते हैं जॉब, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट डालेंगे, एक टेबल पॉइंट का बनेगा, एक टेबल वेटेज का बनेगा, उसके बाद जो ग्रैंड टोटल आता है, फिर वो सारे टोटल को हम लोग एड ऑन करके, जिसका टोटल सबसे ज्यादा उस अकॉर्डिंग उसकी सैलरी, ठीक है, जितना ज्यादा पॉइंट उतना बेहतर सैलरी उसकी। तो इन द फाइनल स्टेप द जॉब इवैल्यूएशन एनालिस्ट totals the point for the office manager job and groups it with other job with similar job total, so this group will eventually become the job pay grade, ठीक है। so here is the procedure what we understood earlier, same procedure यहाँ लिख रखा है, ठीक है। वो बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए वो सारा पॉइंट मैंने ऐड किया है, ठीक है। अगर आप आंसर, वैसे अभी तो खैर डिक्लेयर्ड है कि डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए वो डालना जरूरी था, नहीं तो सिर्फ थ्योरी पे अगर आप जाते तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो इस तरीके से वेटेज दिया जाता है ना, मैरिड एंड डीमैरिड आई थिंक यू कैन डू, ठीक है। जब हम इतना जान गए तो सबसे पहला क्या क्वांटिटेटिव मेथड है, तो सबसे मोस्ट कंप्रीहेंसिव मेथड है। कंप्रीहेंसिव मतलब लंबा चौड़ा टाइम लग रहा है ना इसमें, Yes, ma'am. लंबा मेथड है ये, तो मोस्ट कंप्रीहेंसिव एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। कंप्रीहेंसिव अगर यहाँ है तो ज्यादा हम बारीकी से देख रहे हैं, राइट। तो इसमें एरर का चांसेस थोड़ा कम है, मतलब ह्यूमन एरर बहुत कम थोड़ा है। Yes, ma'am. मिनिमाइज, हाँ मिनिमाइज तो जरूर हो जाता है, अगर पूरा खत्म नहीं हो रहा है तो मिनिमाइज तो जरूर हो रहा है, यस और नो। Yes, ma'am. मोस्ट कंप्रीहेंसिव हो रहा है और एक्यूरेट मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन है, क्योंकि हम पॉइंट दे रहे हैं हर चीज में, तो इतनी बारीकी से देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्यूरेट होता है। फिर prejudice and human judgment are minimized, that is the system cannot be easily manipulated. Second is being the systematic method, मतलब एक सिस्टम से चल रहा है, तो सिस्टमैटिक मेथड होने की वजह से क्या हो रहा है, वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फेवर दिस मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फेवर दिस मेथड लिखा हुआ है, लेकिन वर्कर को अगर आप कैटेगराइज करिए, ठीक है, इसी पॉइंट से डिमेरिट भी आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फेवर दिस मेथड, लेकिन क्या ये मेथड से हम आपका इवैल्यूएशन किए हैं, इस वजह से आपको ये सैलरी दे रहे हैं, तो ये आप मैनेजरियल पोस्ट वाले लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं समझा सकते हैं। लोअर स्केल पे जो काम कर रहा है क्या उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे ये वाला No, मेथड, ma'am. नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से एक डिमेरिट भी निकल के आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल है कि वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फेवर दिस मेथड, क्योंकि ये सिस्टमैटिक है। आगे देखिए द स्किल्स डेवलप्ड इन दिस मेथड कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ऑब्वियसली एक बार हम लोग डिटरमाइन कर लिए तो ये लंबे टाइम तक चल सकता है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कौन सा जॉब हजार्डियस है, वो तो चेंज होगा नहीं, अब अगर बाद में चेंज होगा तो अगेन आपको अल्टरेशन लाना पड़ेगा। अब मैनेजरियल जॉब के लिए मेंटल एफर्ट की जरूरत है, ये तो चेंज होगा नहीं, तो ऑब्वियसली जो आप पॉइंट एसोसिएट कर लिए हैं वो लंबे टाइम तक चलता है, अनटिल एंड अनलेस कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस ना आए, जो हम लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक से आप एसोसिएट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इंटरनल में कोई चेंजेस ना आए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस ना आए, तब तक ये लंबे टाइम तक चल सकता है। जॉब्स कैन बी इजीली मैम प्लेस्ड। इसका थर्ड पॉइंट तो हम ग्रेडिंग मेथड भी डाल सकते हैं ना, ग्रेडिंग मेथड भी सिस्टमैटिक मेथड ही होता है ना। उसमें तो बस हम लोग स्किल की बेसिस पे कर रहे हैं ना। नो मैम, जॉब अप्रेजल वाले में, जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले में सॉरी सिस्टम, परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले में परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले में आप डाल सकते हैं, ठीक है। वहां पे तो हम लोग कंपैरिजन बेसिकली नहीं किए हुए हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ पे तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि विच मेथड इज बेटर, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम लोग टोटली डिपेंड कर रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग मेथड को पिक करते हैं, वही ठीक है। इसमें जो ग्रेडिंग करते हैं हम लोग सारे स्किल पे, तो इसमें तो ये जा सकता है ना कि वो सिस्टमैटिक मेथड होता है। हाँ सिस्टमैटिक मेथड डाल सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल में और भी बहुत सारा मेथड है जो ज्यादा सिस्टमैटिक है, ठीक है। बाकी मेथड को जैसे आपका 360 डिग्री है, ठीक है, उसको ज्यादा सिस्टमैटिक बोलेंगे, फिर बार्स को हम ज्यादा सिस्टमैटिक बोलेंगे, क्योंकि वो दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यूज कर रहे हैं ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो बार्स मेथड याद है, बार्स का फुल फॉर्म मैम वो याद नहीं। तब तो ये 1 घंटा वेस्ट वेस्ट ही कर रहे हैं तब आप, अगर नो रिविजन। मैम ऐसा, नो मैम ऐसा नहीं है।
बिहेवियर एंकर रेटिंग मेथड, जिसमें बोथ Method. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते थे, तो वो तो ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया ना ग्रेडिंग के कंपैरिजन। यहाँ पे Yes. हम पॉइंट भी एसोसिएट कर रहे हैं और यहाँ पे किस स्केल पे कितना मार्किंग कर रहे हैं वो भी एसोसिएट कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप ग्रेडिंग मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला भी कंपैरिजन करेंगे तो ये सब ज्यादा सिस्टमैटिक होगा इन कंपैरिजन टू आपका ग्रेडिंग मेथड, ठीक है। Yes. तो यहाँ हो गया आपका। अब डीमेरिट की बात करें तो अगेन इट इज टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव मेथड, फिर इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर एवरेज वर्कर, जैसा मैंने ऊपर बताया, लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क इज इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग रेटिंग स्केल, एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब वेर इन द वर्क कंटेंट इज नॉट मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है। तो आप जो भी जॉब जहाँ पे आप क्वांटिटेटिव टर्म में आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, वहां अगेन इट इज डिफिकल्ट इस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करना, ठीक है। अब लास्ट मेथड आपका बच रहा है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड में अगर डायरेक्टली अगर मैं सीधा आपको पिक्चर दिखाऊं, ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ कैटेगराइज करते हैं, जैसे की जॉब है इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मैकेनिस्ट, ठीक है। अब बेस वेज यहाँ पे हम कर लिए, मेंटल रिक्वायरमेंट यहाँ कर लिए, अब फिजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ कर लिए, ठीक है। इस तरीके से हम पॉइंट एसोसिएट कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे वहां पे भी हम बात करें कि कोई नया जॉब अगर ला रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हम इस हिसाब से कंपेयर करेंगे। जैसे प्लम्बर ही अभी डिस्कशन हुआ, तो प्लम्बर का क्या हो रहा है, बेस डेली वेज, ये जो है ना फाइनल कैलकुलेशन से आ रहा है, ये जो Yes, ma'am. देख रहे हैं ना ये फाइनल है। यस ऐड करके आया है ये बेस रेट, ऑलराइट। मेंटल रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेंट, स्किल, वर्किंग कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इन सबको ऐड करके हम ला रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए प्लम्बर का करना है हम लोगों को, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग प्लम्बर का मेंटल रिक्वायरमेंट कितना है, क्या मैकेनिस्ट से कम है या ज्यादा है, वेल्डर से कम है या ज्यादा है, इलेक्ट्रीशियन से कम है या ज्यादा है, इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। सेम वे फिजिकल रिक्वायरमेंट भी हम इन तीनों से कंपेयर करेंगे, स्किल कंपेयर करेंगे, और फिर जो ग्रैंड टोटल आएगा वो बेस रेट बन जाएगा। इसीलिए यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो फैक्टर कंपैरिजन मेथड इनमें क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों मेथड अगेन यहाँ यूज कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। रैंकिंग मेथड भी यूज कर रहे हैं और पॉइंट मेथड भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी जॉब एज अ होल भी हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे इस सबसे कंपैरिजन भी हो रहा है ना, यस मैम, ये तीनों जॉब से हम यहाँ कंपेयर भी किए तो कंपेयर भी कर रहे हैं मैम। हो गया, और पॉइंट एसोसिएट कर रहे हैं तो पॉइंट मेथड भी हो गया। उसके बाद जो ग्रैंड टोटल आता है उसको हम लोग कहते हैं आपका फैक्टर कंपैरिजन मेथड। अगेन ये मेरिट डिमेरिट दे रखा है, ठीक है। यस और यहाँ फाइनल ये हम लोग समराइज करके एक जगह यहाँ पे ऐड कर दी हूँ, फैक्टर कंपैरिजन, रैंकिंग, जॉब क्लासिफिकेशन, पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो फाइनली आपको रिवीजन करना होगा, तो सिर्फ ये चेक करना होगा। डिटेल अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होगा तो डिटेल इज ऑलरेडी गिवन ओवर देयर, ऑलराइट। तो ये था आपका जॉब इवैल्यूएशन। अब बच रहा है आपका वेज स्ट्रक्चर, है ना, तो वो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम, ये पीडीएफ लिख दीजिएगा।